Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science history class 7th. Okay, and students chapter number 9. Alright, and the chapter number 9 is the making of regional cultures, and this is video 1 of chapter number 9. Alright students, so let's start. So the chapter is chapter number 9 and the chapter is the making of regional culture. Okay, the making of regional culture. So regional means होता है student क्षेत्रीय, cultures means संस्कृतियाँ. Okay, regional means क्षेत्रीय and cultures means संस्कृतियाँ and making means निर्माण करना. Okay, so the making of regional cultures means क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण. All right, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण. So let's read students. One of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak. When we refer to a person as a Tamil or an Odia, this usually means that he or she speaks Tamil or Odia and lives in Tamil Nadu or Odisha. We also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music, and painting. Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from time immemorial. However, the frontiers separating regions have evolved over time and, in fact, are still changing. Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions, and yet others derive from older practices in a particular area but take a new form in the other regions. Okay, one of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak. तो स्टूडेंट्स, लोगों का जो वर्णन करने का तरीका होता है वो सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना. ठीक है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल मीन्स कि जब हम लोगों का वर्णन जो हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से वर्णन करते हैं, तो उसका जो सामान्य तरीका है, जो सिंपल वे है, वो होता है कि उन्हीं की बोलचाल की भाषा से अगर उन्हें परिभाषित करें तो हम बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन उनके साथ कर सकते हैं. When we refer to a person or as a Tamil or an Odia, this usually means that he or she speaks Tamil or Odia and lives in Tamil Nadu and Odisha. बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, ठीक है, तो आमतौर पर हम समझ जाते हैं, आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल और उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा से बिलोंग करता है या वहाँ पर वह रहता है. ओके, we also tend to associate each regions with distinctive kinds of food, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूज़िक एंड पेंटिंग. और इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के, कोई विशेष तरीके के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं. ओके, अगर किसी ने गुजराती ड्रेस पहना है तो हमें समझ आता है कि ये गुजरात से बिलोंग करता है. ओके, और अगर कोई किसी के खाने में इडली, डोसा, सांभर बन रहा है तो अक्सर वे बना रहे हैं उसे और उनके खाने में वही चीज़ कॉमन है, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साउथ इंडियन है. ओके, तो इसी प्रकार से पोएट्री, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग और विशेष प्रकार के उनका खान पान, विशेष प्रकार का जो उनका परिधान है, उससे भी हम उनको उनके क्षेत्र से जोड़ते हैं. ओके, समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड एज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमोरियल. ओके, और कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं, हम इन चीज़ों को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों के अस्तित्व में, ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं, इमोरियल हैं. ओके,
However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing. Okay. किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच जो विभाजक सीमाएं होती हैं, विभाजक सीमाओं के बनने के समय की जो भूमिका है वह होती है, ठीक है। मीन्स कि किंतु 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 भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच जो विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी में कोई भी विभाजन नहीं है, वह मनुष्यों के द्वारा किया गया है, ठीक है। जैसे कॉन्टिनेंट्स का है, स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, कंट्रीज़ का जो विभाजन है, तो ये नेचर ने नहीं किया, इसे किसने किया है, हम लोगों ने किया है। ओके। तो ऑल्सो व्हाट वी अंडरस्टैंड एज रीजनल कल्चर्स टुडे आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके। सो जो भी ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं, ये काफ़ी जटिल प्रक्रियाओं से क्या हुई स्टूडेंट्स, विकसित हुई हैं, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस विद आइडिया फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, ये जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के इंटरमिक्सिंग से आदान प्रदान ने एक दूसरे को क्या बनाया है, समृद्ध बनाया है। As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions, and yet others derive from older practices in a particular area but take a new form in other regions. Okay. As we will see, some traditions appear specific to some regions. जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। Others seems to be similar across regions, and yet others derive from older practices in a particular area. ठीक है। और परंतु इसके विपरीत कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, ठीक है। फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन्स, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कल्चर से रिलेटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने इस पैरा को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पैरा में हमें यह पता चलता है कि अगर हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है, किसी के क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसके किसी विशेष तरीक़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे उनका खान पान है, उनका पहनावा है, उनका संगीत है, ओके, उनका ड्रेस सेंस है, और उनकी पोएट्री है, उनका नृत्य है, और उनकी पेंटिंग्स। तो इनसे हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि वे किस लैंग्वेज में वे बातें करते हैं, ठीक है। अगर वे गुजराती में बातें करें तो इट मीन्स वो गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, ओके। अगर वो उड़िया भाषा में बात करें तो इट मीन्स वो उड़ीसा से बिलोंग करें। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हमें उस व्यक्ति के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देते हैं, ठीक है। और जो ये संस्कृतियाँ हैं स्टूडेंट्स, ये सब हमारा खाना, हमारी पोएट्री, हमारा डांस, हमारा संगीत, हमारा पहनावा, ये सब संस्कृति का ही एक भाग है। और ये जो संस्कृतियां हैं, ये क्षेत्रीय संस्कृतियां कहलाती हैं, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई थी। और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय जो परंपराएं हैं और हमारे देश के अन्य भागों के विचारों के जो आदान प्रदान हैं, उन्होंने एक दूसरे से मिलकर इसको संपन्न बनाया। ओके, तो स्टूडेंट्स, कुछ परंपराएं तो विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं, द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब हम चेर और मलयालम भाषा के विकास के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब चेर और मलयालम की भाषा का विकास कैसे हुआ, ओके। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन example of the connection between language and reason. The Chera kingdom of Mahodayapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula part of present-day Kerala.
It is likely that Malayalam was spoken in this area. The rulers introduced the Malayalam language and script in their inscriptions. In fact, this is one of the earliest examples of the use of a regional language in official records or in the subcontinent. Okay. Let us begin by looking at an example of the connection between language and reason. Okay, तो चलिए आइए हम भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं. The Chair Kingdom of Mahodayapuram was established in the 9th century in the western part of the peninsula. Okay, तो जो इसमें से अगर हम एक उदाहरण बताएं आपको, तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप पेनिनसुला के दक्षिणी पश्चिम भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया. तो चेर राज्य में पहले क्या बोला जाता था? मलयालम भाषा बोली जाती थी. संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी. ओके, द रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस. और जो यहाँ के रूलर्स थे, जो शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट. इनफैक्ट वास्तव में दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स. ठीक है, वास्तव में यह एक बहुत प्राचीन उदाहरण है. ठीक है, इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के, अगर हम बात करें सरकारी रिकॉर्ड्स का, हम बात करें शासकीय रिकॉर्ड्स का, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हम बात करते हैं, तो वस्तुतः इस भाषा का उपयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है. ठीक है, तो जैसे कि हमने इस पैरा में देखा स्टूडेंट्स, भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण हम प्रारंभ करें तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित इसको किया गया. ओके, संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी. शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया. वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. एट द सेम टाइम, ओके, at the same time, the Chairs also drew upon Sanskritic traditions. The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. The first literary works in Malayalam dated to about the 12th centuries are directly indebted to Sanskrit. Interestingly enough, a 14th century text, the Leela Tilakam, dealing with grammar and poetics, was composed in Manipravalam, literally diamonds and corals, referring to the two languages, Sanskrit and the regional language. Okay, at the same time, ठीक उसी समय, साथ साथ the चेरास also drew upon संस्कृत traditions. ठीक है, साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया. The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. Okay, साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं में भी क्या किया, बहुत कुछ लिया. द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला, और जो केरल का टेम्पल थिएटर बोलते हैं मंदिर रंगमंच को. ठीक है, मंदिर में पहले ईश्वर की उपासना के तहत बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते थे. ठीक है, तो जो केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, किस पर आधारित था? संस्कृत के महाकाव्यों पर वे आधारित था. ओके, The first literary works in Malayalam dated to about the 12th century are directly indebted to Sanskrit. Okay, और जो संस्कृत के मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृति थी, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से किसकी थी? वे संस्कृत की ही थी, यानी संस्कृत की वो ऋणी है. ठीक है,
क्यों? क्योंकि संस्कृत में ही उसका क्या किया गया था, सारे महाकाव्य आधारित थे, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इनफ अ 14th century text द लीला तिलकम डीलिंग विथ ग्रामर एंड पोएटिक्स was composed in Manipravalam, literally diamonds and corals, referring to the two languages, okay, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। और मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, डायमंड एंड कोरल, ठीक है, हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो हम एक बहुत ही रोचक तथ्य यहाँ पर बताते हैं कि 14वीं शताब्दी का जो एक काव्य था, एक ग्रंथ था लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। और मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? डायमंड एंड कोरल, यानी हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब हम पढ़ेंगे रूलर्स, रूलर्स मीन शासक, एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस धार्मिक परंपराएं। द जगन्नाथ कल्ट, ओके, जगन्नाथ कल्ट मीन्स संप्रदाय, ठीक है। तो शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में हम देखते हैं। In other regions, regional cultures grew around religious traditions. The best example of this process is the cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name for Vishnu, at Puri, Odisha. To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identify with विष्णु, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन अदर रीजन, अन्य क्षेत्रों में जो रीजनल कल्चर थे, ठीक है, जो क्षेत्रीय वहाँ के संस्कृति थी, ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। किससे विकसित हुई? क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से इसका क्या हुआ? विकास हुआ। ओके, The best example of this process is the cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name for Vishnu at Puri, Odisha. ओके, और इस प्रक्रिया का अगर हम बहुत अच्छा उदाहरण लें तो इस प्रक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, और जगन्नाथ का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ हम जिसे कहते हैं, उसका अर्थ है कि दुनिया का मालिक, जग का नाथ, ठीक है, दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. आज तक जगन्नाथ की, ठीक है, आज तक जगन्नाथ की जो कास्ट प्रतिमा है स्थानीय जनजातियों लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जो जगन्नाथ हैं मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ओके, In the 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, Anantvarman, decided to erect a temple of Purushottama Jagannath at Puri. Subsequently, in 1230, King Ananga Bhima III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. Okay, in the 12th century, 12वीं शताब्दी में, one of the most important rulers of the गंगा डेंसिटी, तो 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे जिनका नाम था अनंत वर्मन। क्या नाम था जिनका? अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया, ठीक है। क्या बनवाने का निश्चय किया? एक मंदिर बनाने का निश्चय किया पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए। Subsequently, in 1230, the kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the
गॉड। और फिर 1230 में राजा अनंग भीम, ठीक है, राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ओके, तो 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? 12वीं शताब्दी में गंग वंश था, ठीक है। गंग वंश के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था अनंत वर्मन। उन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया और फिर उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ओके, now here are some keywords. At first we will see students figure number 1. What is this? Okay, this is an early Kerala inscriptions composed in Malayalam. Okay, तो चित्र एक में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए ये मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है, ठीक है। तो ये क्या है? ये मलयालम में रचित, इसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है वो मलयालम है, तो केरल का एक ये अभिलेख प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हेन द लैंग्वेजेस यू स्पीक एट होम वर फर्स्ट यूज्ड फॉर राइटिंग। पता लगाइए स्टूडेंट्स कि आपके घर में आप जो भाषा बोलते हैं उसका लेखन सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ होगा, तो इसको ढूंढिए, पता करिए, सोचिए। नाउ फिगर 2, द आइकॉन्स ऑफ बालभद्रा, सुभद्रा एंड जगन्नाथ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट उड़ीसा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र 2 जो है स्टूडेंट्स, ये बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ हैं। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं और ये ताम्रपत्र की पांडुलिपि है। उड़ीसा में ताम्रपत्र की पांडुलिपि में इसे बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, now students, today class is over. Tomorrow I will be back with another topic of this chapter. So till then students, take care, revise and do your work properly. Thank you very much.